हाय गाइस। सो हम लोग कर रहे हैं बेटा चैप्टर 1 के क्विक क्विज एंड बैक क्वेश्चंस। बैक क्वेश्चंस इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारे रीजनिंग को, हमारी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रेंथन करते हैं और उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में भी आ जाते हैं। राइट। क्विक क्विज क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं यूजुअली, लेकिन फिर भी इट्स गुड टू सॉर्ट ऑफ डू देम एंड रिव्यू योर आंसर सो दैट आपको ये पता हो कि आपको क्लैरिटी आई है चैप्टर की कि नहीं आई है। So economics is best defined as the study of. So these questions बेटा are there in your readings. My suggestion is आप पहले कर लो उनको अपने उसमें ट्राई करके you come back to this video to cross check your answers. क्योंकि even if I do give you the right answers, आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो right answer क्यों है. But more important than that is for you to be able to solve it yourself so that you can see where is it that you are going wrong or you're not getting the right answer, or what is the logical reasoning behind that. Then for question 1, economics is best defined as the study of how society manages its scarce resources. ये तो हमने डायरेक्टली चैप्टर में पढ़ा ही हुआ है that economics जो है that's a study of how society manages its scarce resources. It is not about businesses running profitability. मैक्रो में हम लोग इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं लेकिन हम प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। एंड गवर्नमेंट जो है कैन स्टॉप द हार्म फ्रॉम अनचेक्ड सेल्फ इंटरेस्ट। दैट इज ऑल्सो नॉट जस्ट व्हाट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट अ study of how society manages its scarce resources. Opportunity cost of going to a movie. So opportunity cost is every cost, explicit plus implicit cost. क्योंकि so actually opportunity cost is only the implicit cost. Total cost is explicit plus implicit cost. Opportunity cost is the cost of next best alternative. जब आप मूवी के लिए जा रहे हो then you're using the money and the time. So when you're using the money, then it's total cash expenditure needed to go to the movie. क्योंकि अगर आप मूवी पे स्पेंड नहीं करते तो वो पैसा आप कहीं और स्पेंड कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी and there's an opportunity cost of your time, because if you would not go to the movie you could utilize your time elsewhere, which is why the opportunity cost of going to a movie is the total cash expenditure needed to go to a movie plus the value of your time. Okay, the total value of your time. A marginal change. Economics is also something that we study at the margin. At the margin से मतलब हमारा क्या है कि हम देखते हैं marginal benefit and marginal cost. Marginal change होता है बहुत छोटा सा change. छोटा सा change मतलब it's an incremental change to an existing plan. मैंने एक से लेबर बढ़ाई, उसकी वजह से रेवेन्यू कितना बढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने एक यूनिट से अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, उसकी वजह से मेरा टोटल रेवेन्यू कितना बढ़ा, मार्जिनल रेवेन्यू। मैंने एक यूनिट से अपनी कंजम्पशन बढ़ाई, उसकी वजह से मेरा बेनिफिट कितना बढ़ा, मार्जिनल बेनिफिट। बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज एन इंक्रीमेंटल चेंज टू एन एग्जिस्टिंग प्लान। Okay, incrementally alters the existing plan. That is your question number 3, marginal change. Adam Smith's invisible hand refers to. What was an invisible hand? Invisible hand is the ability of free markets to reach desirable outcomes despite the self-interest of market participants. हम बोलते हैं कि हर एक market participants, buyers and sellers, they act in their own self-interest. And despite the fact that they act in their own self-interest, the market is able to reach a point of efficiency. ये हमारी एडम स्मिथ की थ्योरी थी। क्योंकि एडम स्मिथ ने बोला था कि हमारी मार्केट अपने आप में इतनी प्रॉफिटेबल होती है कि मार्केट को गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। मार्केट को गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। Government may intervene in a market economy in order to. Why does the government intervene? We have done this. Government intervene करती है to protect property rights. Yes, jurisdiction लेके आती है ना, जहाँ पे protection of property right हो, तभी तो वो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं वो हमारे लिए सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेंगे। So if I buy an ice cream, that ice cream is mine, is the right which is protected by the government. Government also intervenes to correct market failure due to externalities. We studied this. Yes, the government does that. Achieve a more equal distribution of income. Absolutely. They collect taxes and they give subsidies to the poor people in terms of free food, free healthcare, free education, and stuff like that.
So, which is why it is all of the above. The government does all of these things. They protect property rights, they correct market failure, they do all of these things. If a nation has high and persistent inflation, we studied कि कैसे होता है. हाई एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन होता है जब हमारी गवर्नमेंट, हमारा सेंट्रल बैंक जो है वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ मनी प्रिंट करता है. When there's an excessive amount of money which is printed by the central bank, that is when we have high and persistent inflation. So guys, this is our quiz, but more important is the back questions. So let's start with that. So let's do the back questions then, problems and applications. Question number 1. So in the first question, they're talking about describe some of the trade-offs faced by each of the following. A family deciding whether to buy a new car. So of course, this is a very generic question. तो इसीलिए हर एक का आंसर इसकी में अलग अलग हो सकता है. Your answer, my answer could be very different. So you could have said that, अगर कोई फैमिली नई गाड़ी खरीदना चाहती है तो उस पैसे के अगेंस्ट अगर वो पैसा वो नई गाड़ी में ना डाले तो दे कैन मे बी बाय अ हाउस, उसकी ईएमआई दे सकते हैं. दे कुड गो ऑन अ हॉलिडे, they could buy other things for the house, anything. So buying a new car means the opportunity cost would be the amount of money which is going towards that car. You take that money and utilize it elsewhere. So that's a trade-off. तो अगर आप वो पैसा गाड़ी में यूटिलाइज कर रहे हो तो वो पैसा आप कहीं और यूटिलाइज नहीं कर पाओगे. A member of Congress deciding how much to spend on national parks. So Congress इसलिए इस बुक में लिया जाता है because US के अंदर Congress is what the government is called. In India that is not true, but जब अगर ये आपका जब इंडियन एग्जामिनेशन में आएगा तो the question would say a member of the government deciding how much to spend on national parks. अगेन अगर वो पैसा नेशनल पार्क में जा रहा है तो वो पैसा पब्लिक हेल्थ पे, पब्लिक एजुकेशन में, पब्लिक बाकी चीजों पे स्पेंड नहीं हो सकता. सो डिसाइडिंग हाउ मच टू स्पेंड ऑन अ नेशनल पार्क मीन्स द ट्रेड ऑफ इज दैट मनी could have been used for sanitation, that money could have been used for education, any of those things, और वो पैसा वहां ना यूज होके यहाँ यूज हो रहा है. दैट इज द ट्रेड ऑफ. A company president deciding whether to open a new factory. If he does not open a new factory, company का owner, then he can take the money back home, enjoy the profits. अगर वो एक और फैक्ट्री नहीं खोलेगा तो वो पैसा कहीं और यूटिलाइज कर सकता है और वो ट्रेड ऑफ है. A professor deciding how much to prepare for a class. Now, अभी तक ABC में it was all about money. That the resource that we were talking about was money. In this part, when a professor is deciding how much to prepare for a class, इस part में we are considering the time the professor is giving. So if the professor gives more time to prepare for a class, then he will have lesser time to do anything else. Maybe he wants to go to the gym. Maybe the professor wants to spend time with his her family. Maybe the professor wants to watch something on the Netflix. So any of those things are trade-offs for the professor, because अगर वो ज़्यादा time क्लास को प्रिपेयर करने में लगाएगा तो वो बाकी चीजें नहीं कर पाएगा. A recent college graduate deciding whether to go to graduate school or not. यहाँ पे क्या ट्रेड ऑफ है. अगर एक कॉलेज का ग्रेजुएट है, उसने अपनी ग्रेजुएशन कर ली है, वो डिसाइड कर रहा है कि उसको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है कि नहीं करनी है, तो उसके लिए ट्रेड ऑफ ये है कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो अभी वो नौकरी नहीं कर पाएगा. सो अभी वो जो मनी अर्न कर सकता है वो नहीं कर पाएगा. सो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द मनी दैट ही विल हैव टू गिव अप टू नॉट डू अ जॉब नाउ, बट एक्चुअली decide to go to a post grad college, right? That's question number 1 for you guys. Now the question number 2. In question number 2, the question says you are trying to decide whether to take a vacation. Most of the costs of vacation, airfare, hotel, and foregone wages are measured in dollars, but the benefit of this vacation is psychological. How can you compare the benefits to the cost? You can't compare the benefits to the cost. क्योंकि आप अपने benefits को एक numerical figure दे सकते हो in terms of money, that if I had to give up this much money for the vacation, I would be okay. Because that is how your willingness to pay is there. That is how you calculate your marginal or your benefit of the vacation. So you take benefits in terms of money and then you're able to calculate whether
टेकिंग दिस वेकेशन इज बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट। ये वाला क्वेश्चन बेटा एग्जाम में नहीं आता है, तो आपको ये फिगर आउट करना कि इसको एग्जैक्टली लिखोगे कैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट। दे आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट whether you understand this example inherently or not. You were planning to spend Saturday working at your part-time job, but your friend asks you to go skiing. What is the true cost of going to skiing? The true cost of going for skiing is one, the अगर वो वाला टाइम आप स्कीइंग में नहीं लगाओगे तो वो वाला टाइम आप काम करते। सो द ट्रू कॉस्ट इज the amount spent on skiing, ये तो अभी आपके एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस आपके अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, which means the foregone wages for the time spent on in skiing। क्योंकि अगर आप उसको स्कीइंग में नहीं करते स्पेंड, तो आप उसको अपनी जॉब में स्पेंड करते, जॉब में स्पेंड करते तो आप वेजेस अर्न करते। ठीक है। अगर now he says now suppose you had been planning to spend the day studying at library, then what is the cost? अगर आप लाइब्रेरी में स्पेंड करते टाइम, तो then again the total cost, the true cost would be amount spent on skiing plus the benefit achieved in by studying in library। बेनिफिट अचीव बाय स्टडिंग इन लाइब्रेरी, उसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना आपके लिए, एक कॉस्ट होगी ना उसकी अमाउंट की। उसको आप जब न्यूमेरिकल फिगर डॉलर वैल्यू दे दोगे तो आपके पास दोनों को मिला के एक ट्रू कॉस्ट आ जाएगी। राइट। फोर्थ क्वेश्चन, यू विन $100 in a basketball pool. You have a choice between spending the money and putting it away for a year in a bank account that pays 5% interest. What is the opportunity cost of spending $100 now? So this is something a lot of kids confuse. They say कि मैम अगर $100 है, opportunity cost of spending $100 is $100. No बेटा, it's not. अगर आप सोचो today and 1 year from now, ठीक है, सो दिस इज टुडे एंड दिस इज 1 year फ्रॉम नाउ, और ये है आज। आज आपके पास कितना है? $100। आपको ओवर द ईयर कितना मिलेगा आपके पास? उस $100 का अपॉर्चुनिटी क्या है? क्या आपने उसको बैंक में डाला? बैंक में डाला तो ये $100 तो मेरे पास रहे नहीं ना, मैं इसको कहीं और तो खर्च कर नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ए है स्पेंड कर दो आज, ऑप्शन बी है सेव कर दो आज। जब मैंने ऑप्शन बी में आज सेव करा तो ये $100 मेरे पास नहीं रहे, मैंने उसको बैंक में डाल दिया। जब मैंने उसको बैंक में डाला मुझे तो बैंक से 5% इंटरेस्ट मिला। सो इन द ईयर आई एम अर्निंग ओनली $5। इन द ईयर आई एम अर्निंग ओनली $5, क्योंकि $100 तो मुझे एक साल बाद मिलेगा। तो इफ आई स्पेंड दिस मनी टुडे, देन माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस मनी इज $5 ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम फोरगोइंग। बिकॉज ये $100 तो मैं अभी भी अपने पास नहीं रखनी ना, आई एम गिविंग इट अवे, आई एम पुटिंग इट इन अ बैंक। उसके बाद अगर मुझे कोई बोले कि अगले साल आपकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, तो मैं उस टाइम की ऑल्टरनेटिव्स कंसिडर करूंगी। बट अभी के लिए मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट्स द इंटरेस्ट विच आई एम foregoing because the amount of principal is anyways not with me. Okay, so the opportunity cost of spending this $100 is not $100, it's the $5 of interest that you're foregoing for this year. For the next year it will be something else. All right. Question number 5. The company you manage has invested $5 million in developing a new product, but the development is not quite finished. At a recent meeting, your salesperson reported that the introduction of competing reports has reduced the expected sales to $3 million. तो पहले कोई और सेल्स होंगी लेकिन अब सेल्स आ गई हैं $3 million पे। ठीक है। आपकी जो अभी कॉस्ट है जो बाकी है वो है $1 million। आप जो ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो, ऑलरेडी इन्वेस्टेड, ऑलरेडी इन्वेस्टेड को मैं ऑलरेडी स्पेंट लिख रही हूँ, वो है $5 million। आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बेटा इसके अंदर ना इकोनॉमिक्स इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। ओके, जो पैसा आपने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया वो तो डूब गया ना, वो तो वापस नहीं आ रहा। वो ये थोड़ा ना बोल रहे कि आपने $5 million और स्पेंड करना है।
आप $5 मिलियन ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हो। जो स्पेंड कर चुके हो वो वापस नहीं आ रहा। इट्स नॉट लाइक इफ यू शेल्फ द प्रोजेक्ट टुडे, अगर आप उस प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करते हो तो इस 5 मिलियन में से कुछ वापस आएगा, कुछ वापस नहीं आ रहा, ये तो डूब गया पैसा। अब जब ये पैसा डूब गया तो हम जो डिसीजन लेते हैं, वी टेक अ डिसीजन एट द मार्जिन। एट द मार्जिन मतलब नाउ दिस मनी इज ऑलरेडी गॉन, दिस इज नॉट अ सब्जेक्टिव डिस्कशन एनी मोर। द सब्जेक्टिव डिस्कशन इज कि अगर मैं 1 मिलियन स्पेंड करती हूँ तो मेरे पास 3 मिलियन की सेल आ रही है, क्योंकि जो 5 मिलियन मेरा डूब गया उसको तो मैं कुछ कर नहीं सकती ना, उससे ना मुझे कोई सेल मिल रही है ना वो कुछ और हो सकता है। सो दैट मनी इज ऑलरेडी गॉन। सो माई मार्जिनल कॉस्ट, माई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नाउ इज $1 मिलियन, एंड माई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू नाउ इज $3 मिलियन। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो ऑटोमेटिकली मुझे $2 मिलियन का प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पे, या फिर नेट बेनिफिट हो रहा है ना इस चीज से। इसका मतलब बाय डूइंग दिस आई कैन रिड्यूस माय टोटल लॉस टू $3 मिलियन। और अगर आज मैं कुछ नहीं करती तो मुझे लॉस होगा $5 मिलियन का। तो मेरे लिए दिस इज बेटर ना, विच इज वाई वेन वी आर कंसिडरिंग वेदर टू डू दिस और नॉट, हमारे लिए ये जो पैसा है $5 मिलियन वो मैटर ही नहीं करता। हम देखेंगे इफ माई मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट, देन इन्वेस्ट। If my marginal revenue is less than marginal cost, then I don't invest. So, what should you pay? The maximum that you're willing to pay is $3 million, क्योंकि अगर 3 मिलियन से थोड़ा सा भी कम है तो आपके लिए फायदा है, राइट? क्वेश्चन नंबर 6। 6. A 1996 bill reforming the federal government's anti-poverty programs limited many welfare recipients to only 2 years of benefits. पहले ज्यादा होता होगा, फेडरल मतलब उनका सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उन्होंने पहले उनको ज्यादा वेलफेयर मिलता होगा, लेकिन अब वो बोल रहे सिर्फ 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। How does this change affect the incentives for working? And how might this change represent a trade-off between equality and efficiency? तो बेटा, without actually having the background of कि फेडरल गवर्नमेंट का एंटी पावर्टी प्रोग्राम कैसे वर्क करता है, आप इसको आंसर नहीं कर सकते, बट मैं इसको थोड़ा रिफाइन कर देती हूँ। एंटी पावर्टी प्रोग्राम का मतलब होता है जैसे हमारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। अभी क्या है कि जितने साल कोई अनएम्प्लॉयड है उसको उतने साल बेनिफिट मिलता जाएगा। सरकार बोलती है कि जी ऐसा है कि आपको पूरा टाइम नहीं बेनिफिट मिलेगा, आपको सिर्फ 2 साल के लिए मिलेगा। अगर आपको 2 साल में नौकरी मिल जाती है, वेल एंड गुड। अगर नहीं मिलती है तो हम आपको नहीं सपोर्ट कर रहे, यू फिगर आउट योर ओन थिंग, यू फिगर आउट योर ओन लाइवलीहुड एंड वट एवर। तो हाउ डज दिस चेंज अफेक्ट द इंसेंटिव्स ऑफ वर्किंग? नाउ पीपल वांट टू वर्क मोर, बिकॉज अगर उनको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करेगी तो लोग काम करना चाहेंगे ना। तो माई इंसेंटिव टू वर्किंग डेफिनेटली गोज अप, बिकॉज नाउ पीपल वांट टू वर्क मोर, पीपल वांट टू वर्क मोर। एंड हाउ माइट दिस चेंज रिप्रेजेंट अ ट्रेड ऑफ बिटवीन इक्वालिटी एंड एफिशिएंसी? भाई ऐसा है कि अब हमारा इक्वालिटी जो है वो कम हो गया, क्योंकि जो पुअर है शायद उस पुअर को जॉब ना मिले तो वो पुअर रह जाए। और एफिशिएंसी बढ़ गया, क्योंकि एफिशिएंसी जो होती है दैट इज वन पर्सन शुड गेट व्हाट दे डिजर्व। सो व्हेन वी से डिजर्व, आई एम नॉट सेइंग इट इन मॉरल दिस थिंग। अगर आप प्रोडक्टिव हो, ज्यादा काम करते हो तो आपको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, कम काम करते हो तो कम पैसे मिलने चाहिए, काम नहीं करते तो पैसे नहीं मिलने चाहिए। सो एफिशिएंसी के क्लॉज के हिसाब से अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं, देन वी आर पेइंग सम गिविंग मनी टू समबडी हु इज नॉट इवन वर्किंग। दे डोंट डिजर्व मनी, एफिशिएंसी स्टैंड पॉइंट से, इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट से, मॉरल स्टैंड पॉइंट से नहीं। विच इज वाई एवरी टाइम यू इंक्रीज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, आप इक्वालिटी को कम कर रहे हो और एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हो। एफिशिएंसी और इक्वालिटी में हमेशा ट्रेड ऑफ होता ही होता। So your 7, 8, 9, 10, and 11 are also similar to what we have discussed. Do them. If you want to cross-check your answer or you want to discuss them with me, we'll do that in the live class. All right? Thank you.